Good morning, students. Today we are going to start with the new chapter, and that is from ecology, organisms, and populations. So, first of all, let us talk about this living world. This living world is very beautiful and it has diverse kind of living organisms present on the earth surface. And if we talk about the biological organizations at various levels, what are these biological organizations? Like if we start from the lower level, at the lowest level, macromolecules are there. When these macromolecules aggregate, they form cells. Then cells aggregate, they form tissues. Tissues form organs, and organs, when assimilate in the body, it forms an organism. When many organisms live together, they form population, and when many populations interact with each other, they form communities, and when these communities interact with the environment, they form ecosystems. And when various ecosystems present on the large tropical areas or on the large areas along with the plants, then they form the biomes. So these are the various बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस. अब देखिए, अगर हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, देयर इज़ एन एग्जाम्पल इन योर बुक दैट व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन. जब किसी बुलबुल की आवाज़ आती है तो हमारे माइंड में टू क्वेश्चंस अराइज होते हैं. हाउ डज़ द बर्ड सिंग? एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाई डज़ द बर्ड सिंग? हाउ एंड वाई, इन दोनों क्वेश्चंस का अगर हम आंसर करते हैं तो हाउ के पीछे मैकेनिज़्म ऑफ साउंड प्रोडक्शन हो सकता है कि उसकी जो वोकल कॉर्ड्स हैं दे मे बी वाइब्रेटिंग, और उसकी उनकी वाइब्रेशंस से फिर क्या प्रोड्यूस हो रही होगी? साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी. दिस इज़ द मैकेनिज़्म. हाउ डज़ द बर्ड सिंग? But the next question is, why does the bird sing? Now here the question and the answer for this question is, the bird sings to communicate with other partners. जो उसके साथ के जो उसके पार्टनर्स हैं, उसके मेट्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए जो बर्ड है वो साउंड प्रोड्यूस करती है. इसी तरह से जब भी whenever we observe our nature, various questions come in our mind. For example, why are night blooming flowers generally white? आपने देखा होगा रात की रानी. इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस प्लांट, इट हैज़ वाइट फ्लावर्स. नाउ द क्वेश्चन इज, बिकॉज क्योंकि रात की रानी मीन्स इट ब्लूम्स एट नाइट and it has white flowers. Now the question is, why the night blooming flowers are generally white? Reason is because at night this color can be easily detected. White color जो है वो easily रात को नज़र आ जाएगा. Means there is a reason behind this. Then if the next question is, how does the bee know which flower has nectar? कैसे पता चलेगा? बी जो है उसको कैसे पता चलता है कि उसके पास नेक्टर है? जो उसकी बी की जो स्मेलिंग पावर है that is very strong and it can smell the presence of nectar. The next question is, why does cactus have so many thorns? Cactus have so because cactus grows in desert area. So to prevent the loss of water, to prevent transpiration, the leaves are modified in the form of thorns or spines. And next question is, how does the chick recognize her own mother? Because as the chick comes out of the egg, at first sight it sees her mother, and because of that first sight seeing वो जो है आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये मेरी मदर है. तो यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े उन सब क्वेश्चंस के पीछे हाउ एंड वाई जो है वो माइंड में आता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू आंसर. अगर हम इकोलॉजी की बात करें, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ फ्रॉम इकोलॉजी, तो इकोलॉजी क्या है? सबसे पहले इकोलॉजी जो है इट इज़ अ सब्जेक्ट विच स्टडीज़ द इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एंड हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद द फिज़िकल इन्वायरमेंट. यानी कि इकोलॉजी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम इंटरेक्शन पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स की और उसके फिज़िकल environment की. All of you know that environment is divided into two categories, biotic environment and abiotic environment. अबायोटिक इन्वायरमेंट मीन्स कि वहाँ पर एयर कैसी है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ पर वाटर कैसा है, एंड हाउ इज़ द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया.
All these factors form the abiotic environment. Now this ecology, it has 4 levels of organization. If we talk, जो ये इसके 4 levels हैं organizations के, these are organisms, populations, communities and biomes. These are the 4 levels of organization. अब now one question is coming in your mind that why madam has talked about all the diverse conditions of the nature. यहाँ पर हमने जितने भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की, चाहे वो बुलबुल के बारे में बात की, चाहे चिक के बारे में बात की, या जो नेचर के ऊपर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में बात की, उन सब एग्जांपल्स में हमने एक चीज़ देखी कि दे वर इंटरेक्टिंग विद देयर इन्वायरमेंट आइदर बाय प्रोड्यूसिंग सम स्पेशल स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल कैक्टस हैज़ थॉर्न्स, या फिर बाय प्रोड्यूसिंग स्पेशल साउंड्स, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ बुलबुल। मीन्स कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, एंड दिस इंटरेक्शन इज नॉन एज इकोलॉजी, एंड दिस इकोलॉजी हैज़ 4 levels of organization. So the first level is organisms, second is populations, third is communities, and fourth is biomes. Now let us understand the meaning of all these levels. ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं एट एन इंडिविजुअल लेवल, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिज्म. देन व्हाट इज़ पॉपुलेशंस, व्हेन दीज वेरियस ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर दे फॉर्म पॉपुलेशन. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जो बनाना प्लांट ले लिया हमने, या हमने नीम ले लिया, या फिर हमने मैंगो ट्री ले लिया. जितने भी मैंगो ट्रीज़ हैं, मैंगो ट्री एक ऑर्गेनिज्म माने प्लांट हो गया. व्हेन दीज मेनी मैंगो ट्रीज आर टेकन टुगेदर दे फॉर्म द पॉपुलेशन ऑफ मैंगो ट्रीज. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कम्युनिटीज़. व्हाट आर कम्युनिटीज़? द पॉपुलेशन मे बी ऑफ मैंगो, population may be of cows, population may be of buffaloes, of dogs, of human beings. When these various populations come together, live together, interact, then they form the communities. And when the various communities at a large scale, when taken together along with plants, animals and the geographical conditions, तो उसे हम बोलते हैं biomes. तो ये क्या हो गए, 4 levels of ecology. Yes, and when these various biomes together form the biosphere. Biosphere means part of the earth where living organisms are present. Now organisms and its environment. देखिए बेटा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो हैं वहाँ पर वो अपने अबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं. किस तरह की वहाँ की जो है सराउंडिंग्स हैं, किस तरह की वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, वो उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफ़ेक्ट करती हैं. एंड डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड. उनकी बॉडी के अंदर उस तरह के चेंजेस आ जाते हैं, and these adaptations are necessary for the survival of the organisms and also for the reproduction. For example, if cactus is living in desert and it does not have that reduced leaves in the form of spines, तो फिर lot of evaporation होगा water का and cactus will not be able to survive. तो यानी cactus को वहाँ पर survive करने के लिए क्या ज़रूरी हो गया कि लीव्स किस में मॉडिफाई हो गए, थॉर्न्स में. तो यानी adaptations are necessary for the organism to survive in the environmental conditions. Now let us take one more example. All of you have learnt about the 2 types of motion of earth, that is rotation and revolution. अब रोटेशन की अगर हम बात करें तो रोटेशन का मतलब क्या है कि अपने ही एक्सिस पर जो है घूमना. अब अगर हमने रोटेशन ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ की बात करते हैं और एक हम रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो जो ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन है ये डे नाइट्स और सीजन्स को फॉर्म करते हैं. और इन दोनों तरह के मोशंस से जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं, डिफरेंट सीजन्स फॉर्म होते हैं, चेंजेस इन टेम्परेचर आ जाते हैं. और जब चेंज इन टेम्परेचर आएगा तो वहाँ पर जो रेनफॉल है, प्रेसिपिटेशन है,
वो भी चेंज हो जाएगी। और इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन द रेनफॉल डिफरेंट बायोम्स विल बी फॉर्म्ड। सपोज मोर रेनफॉल इज़ देयर, तो वहाँ पर क्या बन जाएंगे, रेन फॉरेस्ट बन जाएंगे। इफ़ वेरी लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ देयर देन दैट विल फॉर्म द डेजर्ट। यानी कि वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशंस ने क्या किया, उस तरह के पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं और उन्होंने अपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस लाए हैं। इफ़ द चेंजेस विल नॉट कम इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। नाउ इन दिस चार्ट मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, यहाँ पर रेनफॉल शो कर रखी है और रेनफॉल के साथ टेम्परेचर शो कर रखा है। मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल इज शोन इन सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर इज शोन इन डिग्री सेल्सियस। एंड यू आर एबल टू सी कि जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है और प्रेसिपिटेशन कम है। एग्जाम्पल लेते हैं तो डेजर्ट में टेम्परेचर इज़ हाई एंड द प्रेसिपिटेशन इज़ वेरी लो, तो इसलिए वहाँ पर डेजर्ट वाली कंडीशंस क्रिएट हो गई हैं। ग्रासलैंड की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर इज़ मोर बट द रेनफॉल इज़ ऑल्सो देयर, तो ग्रासलैंड बन गया है। टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, यानी कि जिस तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रेनफॉल और टेम्परेचर उस तरह के वहाँ पर क्या बन गए हैं, बायोम्स बन गए हैं। ये जो बायोम डिस्ट्रीब्यूशन है ये शो कर रहे हैं कि किस तरह से डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सरवाइव करेंगे। अब देखिए बेटा, वहाँ की जो लोकल वेरिएशंस हैं, जो रीजनल वेरिएशंस हैं, वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स फॉर्म करती हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट, ऑल ऑफ़ यू आर फेमिलियर, डेसिडियस फॉरेस्ट वो होते हैं जो कि अपने लीव्स को शेड ऑफ कर देते हैं जब समर्स आती हैं तब। डेजर्ट, ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर, ड्राई एरिया हो गया। सी कोस्ट, कोस्टल एरियाज़ ऑफ द सीज़। एंड रेन फॉरेस्ट वो एरियाज़ होते हैं जो कि हमेशा एवरग्रीन रहते हैं वहाँ पर। तो ये सब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स फॉर्म हुए बिकॉज ऑफ द रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस, बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल कंडीशंस, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एंड रेनफॉल। हैबिटेट आप सबको पता है, प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए बेटा, अगर हम डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स को लेते हैं तो चाहे वो जो हैं पैथोजेंस हों, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैरासाइट्स हों जो दूसरों से फूड ले रहे हैं, प्रीडेटर्स एंड कॉम्पिटिटर्स, ये सब ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ऑल बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, और तब उसके साथ खुद, यानी कि अगर हम इकोलॉजी की डेफिनेशन भी देखते हैं तो वहाँ पर भी ये है कि इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिजम्स का आपस में भी इंटरेक्शन और अपने इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्शन। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑल्सो एंड विद द बायोटिक फैक्टर्स ऑल्सो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक इनटू कंसिडरेशन the measure abiotic factor, that is temperature. Temperature is the most important abiotic factor we can say because it determines the biomass. किस तरह के biomass means कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर रह रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज बायोमास। जो टेम्परेचर है वो बायोमास को डिटरमाइन करता है, इसलिए इसको इकोलॉजी के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कहा जाता है। अगर इफ़ द एवरेज टेम्परेचर इंक्रीजेज ऑन लैंड what will happen, there will be decrease in the number of organisms. See, average temperature on land varies seasonally and decreases progressively from the equator towards the pole. पता ही होगा इक्वेटर पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज़ होता जाता है। और इसी तरह फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन टॉप्स, हम प्लेन एरिया पर रहते हैं टेम्परेचर इज़ मोर एंड एज वी गो टू द हिली एरियाज़ जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। अब जो टेम्परेचर है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। इफ़ यू टॉक ऑफ द पोलर एरियाज दे हैव वेरी लिटिल बायोमास। कारण क्या है, क्योंकि पोलर एरियाज़ पर टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत कम टेम्परेचर होने के कारण वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत कम सर्वाइव कर पाते हैं। What is the reason? Reason is
कि जो हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन सबको एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम जाते हैं एल्टीट्यूड्स पर, हिली एरियाज़ पर या पोल्स की तरफ, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं, और इसीलिए जो है वहाँ पर उनका सर्वाइवल जो है इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर देम। एंड दैट्स वाई जो मॉडरेट टेम्परेचर वाले एरियाज़ हैं दे हैव मोर पॉपुलेशंस एज़ कंपेयर टू द एरियाज़ ऑफ पोलर रीजन। Now there is one word, eurythermal, the organisms which can tolerate wide range of temperature। कुछ ऐसे organisms हैं जो हर तरह के environmental conditions में survive कर सकते हैं। For example, cat, dogs and tigers. Such organisms are called as eurythermal organisms। And the organisms which can tolerate only a narrow range of temperature are called as stenothermal। For example, penguin. Penguin cannot live in the hot areas. Fishes cannot live in water and in hot water। तो यानी कि जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही रह पाते हैं दे आर कोल्ड एज स्टीनोथर्मल। वेयरएज जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब हाई और लो में रह सकते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरीथर्मल। नाउ द नेक्स्ट abiotic factor is water। Water is very important for all living organisms। Why? Because it is necessary for the metabolic activities of the body। और चाहे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ प्लांट्स में हो रही हों या फिर एनिमल्स में हो रही हों। इफ़ वी टॉक अबाउट द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जो वाटर है उसकी केमिकल कंपोजिशन एंड पीएच ऑफ द वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वहाँ जो है वाटर की केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है या फिर अगर उसका पीएच चेंज होता है तो जो फिशेस हैं या जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन नॉट सर्वाइव। कुछ तो इस तरह के जो हैं ऑर्गेनिजम्स हैं एक्वेटिक एनिमल्स जो कि एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ सैलिनिटी में ही सर्वाइव कर सकते हैं। अगर सैलिनिटी, व्हाट इज सैलिनिटी? अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर। अगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व सॉल्ट का अमाउंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है उस पर्टिकुलर रेंज से, then it becomes difficult for the survival of such aquatic organisms।